मैं अमित शाह और पीएम मोदी को चुनौती देता हूं और सनातन पर बहस करने के लिए तैयार हूं। दिल्ली में 10 लाख नहीं 1 करोड़ लोग जुटते हैं। शंकराचार्य सहित किसी को भी आमंत्रित करें, मैं पेरियार और अंबेडकर की किताबें ही ले रहा हूं। तो डीएमके की ओर से उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद अब एक बार फिर से पार्टी के सांसद ए राजा ने विवादित बयान दिया है और सनातन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। அமைச்சர் தம்பி உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் பேசிய பேச்சு இன்றைக்கு இந்தியா முழுக்க ஒரு விவாத பொருளாக ஆகியிருக்கிறது. அந்த விவாத பொருளுக்கு விடை சொல்லுகின்ற நிகழ்ச்சியாகவும் இந்த நிகழ்ச்சி அமைந்திருக்கிறது. ஏனென்றால் சனாதனமும் விஸ்வகர்மா யோஜனமும் வெவ்வேறு அல்ல. ஆனால் எனக்கு என்ன விந்தையாக இருக்கிறது என்றால், உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் மென்மையாகத்தான் சொன்னார், மலேரியா போல டெங்கு போல ஒழிக்க வேண்டும் என்று. மலேரியாவுக்கும் டெங்குக்கும் சோசியல் ஸ்டிக்மா இல்லை, அது ஒரு அருவருப்பா சமூகம் பார்க்காது. அருவருவாக பார்க்குற ஒரு சனாதனத்தை சொல்லணும்னா முறைப்படி ஒரு காலத்தில் தொழுநோய் இருந்தது, இப்போ ஹெச்ஐவி இருந்தது. எங்களை பொறுத்தவரை ஹெச்ஐவி தொழுநோயை போல ஹெச்ஐவி போல சமூக அவலம் நிறைந்த ஒரு நோயாகத்தான் நம்ம பார்க்கணும். ஒன்று. இன்னொன்று, சனாதர்மத்தை கடைபிடிங்கன்னு பிரதமர் சொல்றாரு. அவர் உள்ளபடியே கடைபிடிச்சிருந்தா இத்தனை வெளிநாட்டுக்கு போயிடக்கூடாது. ஏன்னா ஒரு நல்ல இந்து வெளிநாடு கடல் கடந்து போகக்கூடாது. உனக்கு ஊர் சுத்துறதே வேலை. சனாதனத்தை மீறி ஊர் சுத்துற ஒரு ஆளு சனாதனத்தை காப்பாற்றுன்னு சொல்றது எவ்வளவு பெரிய அயோக்கியத்தனம். இந்த அயோக்கியத்தனத்துக்கு இன்றைக்கு அமைச்சரவையை கூட்டி சனாதனத்தை பற்றி நன்றாக பேசுங்கள், பரப்புங்கள். நேற்றைக்கு நான் சவால் விட்டுருக்கேன் பிரதமருக்கும் அமித்ஷாவுக்கும். 4 வருடத்தை பற்றி சனாதனத்தை பற்றி விளக்க வேண்டும் என்று, தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்பினால் அல்லது விவாதம் நடத்தி அதுதான் சரி என்று சொன்னால், திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் எங்களுடைய தலைவருடைய அனுமதியோடு சொல்கிறேன், மோடி அவர்களே, அமித்ஷா அவர்களே, 10 லட்சம் பேர் அல்ல 1 கோடி பேரை டெல்லியிலே திரட்டுங்கள். உங்க சங்கராச்சாரிய எல்லாத்தையும் மேல உட்கார வை, உங்க எல்லா சாமாரியும் கொண்டுட்டு வா, பில்லு அம்பு கொடுவா கத்தி எல்லாத்தோடு ஒரு பக்கம் நிக்க வச்சுக்க. நான் வெறும் பெரியார் புத்தகத்தோட அம்பேத்கர் புத்தகத்தோட வரேன். सनातन पर महासंग्राम जारी है। देश के नेता अलग अलग तरीके से सनातन पर ज्ञान दे रहे हैं, वार पलटवार भी कर रहे हैं, लेकिन राजनीति थम नहीं रही। कोई चुनौती दे रहा है तो कोई अपने ही घर में झांकने की बात कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को लेकर जब बयान दिया तो सोचा भी नहीं होगा कि ये मुद्दा उनके गले की फांस बन जाएगा। केंद्र की मोदी सरकार और इंडिया गठबंधन के बीच जंग शुरू हो गई है। हर कोई सनातन पर ज्ञान बांटने में लगा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार सनातन का अपमान क्यों? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ कहा कि कोई भी सनातन को चुनौती नहीं दे सकता है। ये भी सत्य है कि आज कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे सनातन धर्म को चुनौती देते हैं कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। आज अगर यहाँ का वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते हैं। इस बीच उदयनिधि स्टालिन ने नया बयान जारी किया है। उदयनिधि ने ट्वीट करके लिखा है कि पीएम मोदी एंड कंपनी सनातन चाल चल रहे हैं। 9 साल में पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो सभी मामलों का सामना करेंगे। वो किसी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। ये सब कुछ मणिपुर हिंसा से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि मेरा धर्म संविधान है। बीजेपी की इसमें क्या समस्या है? क्या बीजेपी संविधान को नहीं मानती? If you hear my statement very clearly, it was not against any religion. I put out that statement online. I said any religion that discriminates between fellow human beings is not a religion. And I follow the Constitution, which gives everybody the dignity of being a human. सनातन पर जब विवाद बढ़ता गया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आगे आना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सनातन पर सरकार के मंत्री बोलेंगे, लेकिन संभलकर। पीएम ने कहा कि उचित और समुचित जवाब देना चाहिए, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए। उन्होंने मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि सनातन विवाद में जरूरत हो तभी बोलें। इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सनातन का विरोध करने वालों को जबरदस्त चुनौती देते हुए नजर आए। हालांकि उनका निशाना मल्लिकार्जुन खड़गे थे, लेकिन जुबान पर कंट्रोल नहीं रख सके। तेरा बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनबी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे,
थे। ये भगवानधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। उदयनिधि स्टालिन के बयान के बाद इंडिया अलायंस के नेता ही आपस में बटे हुए हैं। कई नेता अलग सुर में बोल रहे हैं। ममता बनर्जी, रामगोपाल यादव ने साफ कहा कि किसी की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना उचित नहीं, लेकिन उदयनिधि अपने बयान पर अड़े हैं। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने उदयनिधि के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि हिंदू धर्म में छुआछूत की नीति पर पहले भी सवाल उठे हैं। हिंदू धर्म में सबसे पहले ये जो दलितों के बारे में जो छूत अछूत की नीति थी, उसके खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाया है, बगावत की है, तो बगावत की आवाज़ हिंदू धर्म से उठी है। इस बीच बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा है कि सनातन प्राचीन परंपरा है, इसको मिटाने के लिए जिसने भी प्रयास किया वो मिट गया। सनातन एक प्राचीन परंपरा है, जिसके अनुसार धर्म है, जिसके अनुसार हम जी रहे हैं और पूरे देश को हम ज्ञान दे पाए हैं। इसको मिटाने के लिए अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन वो मिट गए हैं। लेकिन सनातन अपना उसी प्रकार से चिरस्थायी खड़ा हुआ है। जाहिर है सनातन परंपरा पर नेता ऐसे ही जंग नहीं लड़ रहे। अगले साल लोकसभा चुनाव है और वोट की खातिर कुछ भी करेगा की नीति जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।